Good morning, friends. We had discussed so many things about wave, and we had also discussed so many things about wave equation. So we had also discussed about velocity of wave in a string. Now take one more question on velocity of wave. That is, suppose it is given in the question like this. This is a string of different mass density of different mass density. Okay. So suppose here is a mass 10 kg. Okay. Now in this question, suppose it is given like this: mu is equal to 10 to the power minus 2 kg per meter, and here it is given 1 kg per meter. Suppose this is given to you. Okay. This is given in the question. Okay, so suppose, and if we have been asked the same question, okay, this is the pulse, and this distance is 1 meter, and this distance is again it is 1 meter. Okay, then how much time it will take to reach at that point? ठीक है, अभी ये वेव जब चलेगा तो at this point there is some reflection takes place and transmission takes place. You don't have to bother about reflection. हम लोग बाद में पढ़ेंगे टॉपिक, then we will discuss about that. रिफ्लेक्शन के बारे में आप अभी भूल जाइए. ठीक, सीधा मेरा सवाल ये है कि ये पल्स जो है इधर से यहाँ तक कितनी देर में जाएगा. ठीक है, फाइंड द टाइम. Find the time. If it is point A, if it is point B, find the time taken by pulse to reach from A to B. So simply this is the question, and ignore reflection. I am also giving it. Ignore reflection. Reflection at the junction. Junction पे हालांकि reflection होता है. At the junction. जंक्शन. ओके, जंक्शन बोले तो ये जंक्शन. इज दिस ओके? तो चलिए फिर कॉमन सी बात है, इसमें हमको निकालना पड़ेगा क्या? टेंशन. अगर टेंशन देखा जाए तो इधर कितना है? दिस इज 100 न्यूटन. ठीक है, तो इधर 100 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन. ठीक है, फिर इसमें भी 100 न्यूटन. और टेंशन तो सभी बराबर रहेगा. टेंशन को ये छोटा है बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है. टेंशन सभी में बराबर रहेगा. दैट इज 100 न्यूटन. Okay, now find velocity in first wire. Suppose this is first, this is second. Okay, so suppose velocity v1 is equal to root under t upon mu1. Okay, and mu1 is what? This one. This is mu1 and this is mu2. Is this okay? Now put the value and get the answer. 10 t is 100 and mu1 is how much? 10 to the power minus 2. It is again what? 100 meter per second. ठीक है. So now t1, time to reach from A to, suppose if this point is C, time to reach from A to C. t1, time to reach from A to C. कितना हो जाएगा ये? That is t is equal to यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वेव का. So यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा? That is distance upon velocity. That is 1 meter upon 100 सेकेंड. इतना लग गया. ठीक है. दूसरे के लिए तो v2 कितना हो जाएगा? रूट अंडर t तो उतना ही है और अपॉन mu2. So it is how much? That is 100 and mu2 is given to be 1. So that is 10 meter per second. So now again t2, time taken to move from
to move from C to B. Okay, that is equal to how much? That is 1 upon 10 second. So total time is how much? Total time is 1 upon 100 plus 1 upon 10. That is how much? 100, 1 plus 10, that is 11 upon 100 second. That is t is equal to 0.11 second. This is the answer. So इस तरह के सवाल को ऐसे करा जा सकता है. Here velocity v1 is 100 meter per second, which I had calculated, and here v2 is 10 meter per second, which I had also calculated. Okay, so in this way you can find the answer. Simple. Okay, now come to another topic, that is energy. If a wave is traveling on a string, which wave? Sine wave. Then how much energy is taken at any point? Okay, and also we'll talk about average energy. Okay, so see, energy carried by string during sine wave propagation. तो जब साइन वेव चलता है स्ट्रिंग में तो उसमें कितना एनर्जी है जो किसी पॉइंट पे किसी समय पे कितना एनर्जी वो कैरी कर रहा है, हम ये निकाल सकते हैं. कैसे? चलो मैं बताता हूँ. इसके लिए मुझे डिराइव करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. देखिए, ये सपोज करिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक, और इसमें जो है ये चल रहा है वेव, साइन वेव. ओके, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए कि ये है वो स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग पहले से ऐसा था, जब वो कैरी करने लगा तो ये ऐसा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है. तो सपोज एट एनी पॉइंट, दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, सपोज दिस लेंथ इज dx. हम लोग छोटे से लेंथ पे बात करेंगे और ताकि पूरे वेव को हम लोग समराइज कर सके और देख सके वहाँ पे कितना है, ठीक है. तो सपोज करिए हमने dx लिया और जिस पे हमको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे टेंशन कितना है? t. मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? t. ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? t. दैट इज t. ओके, नाउ अब इसको हमको एनालाइज करना है, तो आई एम टेकिंग इट टू 20x जूम. 20x जूम करके अगर देखें तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा, बड़ा सा, ठीक है. दिस इज टेंशन t एंड here it is टेंशन t. ओके, अच्छा, अब जरा देखिए इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है. अगर ओरिजिनल लेंथ देखा जाता तो tx है. क्या ये थोड़ा खींच गया है? वेव की वजह से खींच गया है. बिल्कुल खींचेगा, क्यों नहीं खींचेगा? टेंशन है ना उसमें, और वेव भी जा रहा है, तो क्या ये इतना से इतना खींच गया है? तो सपोज करिए कि ये जो लेंथ है ये ds है. क्या है? ds है. चलिए, अगर हम एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज द ओनली एनर्जी कैरिड बाय स्ट्रिंग. यही दो एनर्जी है जो इसके द्वारा कैरी किया जा रहा है. अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें कि सपोज करिए, मुझे बताइए कि इस पॉइंट पे वेव कितना एनर्जी कैरी कर रहा है, तो कितना एनर्जी के बारे में अगर पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे? समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस. और कोई एनर्जी हो ही नहीं सकता. Because there is two things. One is extension, that is elastic force, and one is what? Inertia. तो जब इनर्शिया का बात करेंगे तो कौन सा एनर्जी आएगा? हाफ mv². और जब एक्सटेंशन की बात करेंगे, इलास्टिक फोर्स की बात करेंगे, तो वो क्या देगा? वो क्या देगा? वो देगा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है दोस्तों,
हम अपने पुराने कंसेप्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमने पढ़ाया था आपको, इट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स? व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स हियर? दिस टी। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इट? अगर हम देखें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय इट, दैट इज डी यू, दैट इज टी इंटू एक्सटेंशन। कितना एक्सटेंड करा? ये पहले लेंथ इतना था, अब इतना हो गया, तो व्हाट इज द एक्सटेंशन? ds माइनस dx है या नहीं? इतना ही एक्सटेंशन हुआ ना, अभी ये इतना हो गया, पहले कितना था? इतना। तो जो दिस माइनस दिस दैट इज द एक्सटेंशन, जितना वो करा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है, d है ना, मैंने तो 20x जूम करके दिखाई, इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली तो बहुत छोटा है। तो क्या हम इसको स्ट्रेट मान सकते हैं? आंसर है बिल्कुल मान सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट माने तो ये कितना होगा? दिस इज dx and suppose this is dy, and if it is straight line then I can apply also what? Pythagoras theorem. आप जरा ध्यान से देखिए, this ds would be equal to what? रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, है या नहीं? इज दिस ओके? सो अगर हम यहां पे देखें तो du क्या हो जाएगा? du हो जाएगा रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। देख लीजिए अच्छे से, यही बेसिक है इसमें। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी इस छोटे से लेंथ में, ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ सी, तब अगर देखेंगे कि du बराबर कितना हो गया भाई साहब? du बराबर हो गया t। अगर हम dx कॉमन ले लें इसमें से तो क्या होगा एक्सप्रेशन? dx, आप dx कॉमन लीजिए, बाहर ले लीजिए, dx दैट इज रूट अंडर 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस 1। आप खुद से, ये मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, dx मैंने कॉमन लिया है, अंदर dx स्क्वायर था, बाहर आएगा तो dx आएगा, यहाँ पे dx नहीं, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया dx से और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे dy स्क्वायर है, यहाँ भी dx स्क्वायर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अच्छा, ठीक है भाई साहब, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये dy बाई dx बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? अगर हम गौर से देखें तो dy बाई dx छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा? तो छोटा होगा। d की बात कर रहे हैं सर, इज वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो क्या हम बाइनोमियल? सो ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखा जाए तो dx कॉमन ले लिया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने dx जब कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे स्क्वायर था, वो बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो dx बचेगा, और यहाँ पे नहीं था इसलिए नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, और इधर से लिया तो यहाँ -1। ओके, सो नाउ what we have to calculate is basically potential energy per unit length. So it is du over dx is equal to t into, now if you see this dy by dx is very small. Why? Because dy, d का चर्चा कर रहे हैं तो dy upon dx is also very small, बहुत छोटा क्वांटिटी है ये। अगर ये बहुत छोटा क्वांटिटी है तो क्या हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। आंसर है ऑफ कोर्स वी कैन यूज इट, सो जस्ट यूज इट। So it is 1 plus 1 by 2 dy over dx minus 1। ये 1 से 1 चला गया, that is because why we had done this? Because dy upon dx is what? Is very small. Then we can use this. Okay? Yes, this one. Okay. So now converting it into the partial differential equation, because here are two variables x and t. Now we have to here it is what? Differential of u with respect to x, and there is x and t both. So with respect to one variable if I want to take, I have to take partial differential equation, जो हम लोग को पता है। तो हमको लेना पड़ेगा dever u over dever x is equal to t into dever y t by 2 dever y over dever x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज आई एम यूजिंग द इक्वेशन एज y is equal to a, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव sin kx
minus omega t plus phi. This is the general equation of wave. So now what is d over y upon d over x? It is nothing but a k cos kx minus omega t plus phi. You can see it. आप देख भी सकते हो पहले. Okay. So now we have to put that equation here. d over u over d over x is equal to t by 2, that is a स्क्वायर कर लीजिए आप, a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5. इज दिस ओके? आप इसको फ्रॉम 1 कर दीजिए, फ्रॉम 1, और यहां ले लीजिए इसको 1. इज दिस ओके? चलिए, अब यहां तक हो गया काम. नाउ इसके बाद देखते हैं डेवर यू ओवर डेवर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम. तो t बाई 2, अच्छा a स्क्वायर. अच्छा अब आप ये देखिए दोस्तों कि आप ये यूज करते थे k इंटू वी बराबर ओमेगा, तो क्या k को हम ओमेगा अपॉन वी लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? सो दिस k वुड बी ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज वेव वेलोसिटी, इंटू t बाई 2 स्क्वायर. यस, इट इज cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5. ठीक है. नाउ अब हमको ये भी पता है कि t इज इक्वल टू रूट अंडर v इज इक्वल टू रूट अंडर t अपॉन म्यू होता है. तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर टाइम्स म्यू. दिस इज 2. ठीक है. सो फ्रॉम 2 हियर इट इज, दैट इज डेवर u ओवर डेवर x इज इक्वल टू t को लिख सकते हैं v स्क्वायर म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ओके, एंड हियर इट इज cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5. राइट इट डाउन. यहां पे आप v स्क्वायर को, अच्छा यहां पे 2 भी है, यस, t अपॉन 2, v स्क्वायर से v स्क्वायर काट दीजिए एंड राइट इट डाउन. चलिए यहां पे लिख लेते हैं. Here it is डेवर u over डेवर x is mu a स्क्वायर. अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज 2 पाई न्यू. ठीक है. तो बट दिस इज ओमेगा बेसिकली, बट दिस यहाँ पे v अवेलेबल है, आपको म्यू अवेलेबल है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो. हम यहाँ पे f लेके चलेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई f. तो हमको यहाँ पुट करना है ओमेगा स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5. एंड नाउ हियर इट इज डेवर u ओवर डेवर x, 2 से ये काट दीजिए दो बार में. सो इट इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड a स्क्वायर म्यू cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5. ओके, इस एक्सप्रेशन को हमको ध्यान रखना है. Now this is called what? This is called potential energy. Potential energy per unit length, because it is du over dx, per unit length. Okay, potential per unit length at any instant and at any point. किसी पॉइंट पे किसी समय में आप पा सकते हो. कैसे? हेयर यू पुट x, हेयर यू पुट t, आप जो भी मर्जी हो रख के आप निकाल लीजिए. सो डू इट. अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए. ओके, नाउ कम. इस पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया? पोटेंशियल एनर्जी. क्या निकाल लिया? पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या इस पॉइंट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा? आंसर है होगा. वो कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, एंड v इज व्हाट? स्पीड. ओके, in kinetic energy formula v is what? Speed, because kinetic energy is a scalar quantity. okay, तो मुझे इतने ही दूर का निकालना है. अच्छा, इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसका मास हो जाएगा dm
दैट इज म्यू टाइम्स डी एक्स. वाई? बिकॉज म्यू इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ. तो मुझे इतने ही लेंथ का चाहिए तो मुझे मास आ जाएगा. अच्छा, ये पार्टिकल किधर जा रहा है? अगर ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन तो इसी की तरफ होता है ना, एंड दैट इज वीपी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. और इसको हम क्या बोलते हैं? डेवर वाई ओवर डेवर टी. आपको ये मैंने पढ़ाया है. सो चलिए वो भी निकाल लेते हैं. दैट इज स्मॉल पार्ट के लिए है तो डी के ओवर 1/2 dm इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटू स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट डी के इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू टाइम्स डी एक्स. ओके, एंड वीपी इज व्हाट? डेवर वाई ओवर डेवर टी का होल स्क्वायर. वाई इट इज डेवर वाई? बिकॉज नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. ओके, अच्छा इसको भी हम लोग पार्शियल में कर देते हैं बिकॉज इट इज डेवर यू ओवर डेवर एक्स. अगेन वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ. जैसा वहां पे निकाले थे वैसा ही यहाँ पे निकालना है. दैट इज 1/2 इंटू म्यू, एंड व्हाट इज डेवर वाई अपॉन डेवर टी? सो वी कैन फाइंड इट हियर. इट इज डेवर वाई, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं. डेवर वाई अपॉन डेवर टी इज व्हाट? माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. बच्चों एक बार हम जब ये ले लेंगे, अगर हम के एक्स माइनस ओमेगा टी लिए हैं तो हर जगह हमको वही लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी ले, यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स ले, गलत हो जाएगा वो. बिकॉज वी हैव टू फिक्स रेफरेंस वन टाइम इन अ केस. आप रेफरेंस फिक्स कर लिए, उसके हिसाब से आपने ये लिख लिया, तो आपको वही फॉलो करके चलना है आगे. ठीक है, तो उसको फॉलो करके चलेंगे. एंड सपोज इट इज थर्ड बेसिकली. यस, नाउ सो दिस इज, नाउ पुट द वैल्यू a माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. ये दिस इज फ्रॉम थर्ड. ओके, सो नाउ डेवर के अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू बेसिकली 1/2 म्यू ए स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, इट इज कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. Is this okay? So डेवर के ओवर डेवर एक्स इज इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर. ओमेगा क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ. सिमिलरली तो इट इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. इज दिस ओके? अब यहां पे अगेन कट जाएगा. सो डेवर के ओवर डेवर एक्स इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. दिस इज द इक्वेशन. दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट एंड एट एनी पॉइंट. ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों इसको मैनिपुलेट कर रहे थे. एफ को उसमें लिख रहे थे, उसमें लिख रहे थे, ताकि हमको सेम लेके आना था. देखो सेम है कि नहीं है? आंसर है हाँ सर सेम तो है. ये कुछ कहता भी है चीख चीख के. मैं बताता हूँ क्या कहता है, पहले आप इसको लिख लीजिए. लिख लीजिए इसको. ओके, नाउ कम. सो हमारे पास एक चीज आ गया, आप देखिए ध्यान से. हमारे पास क्या क्या आ गया? तो हमारे पास आ गया डेवर यू ओवर डेवर एक्स इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है,
अच्छा, एंड डेवर के ओवर डेवर एक्स इज इक्वल ऑल्सो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। ये क्या बताता है, ये क्या कहना चाहता है बेसिकली? तो ये बेसिकली बच्चों कहना ये चाहता है और चीख चीख के कह रहा है कि जहां पे जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। और ये बिल्कुल सही बात है। बुक में आप देखोगे तो तुरंत पावर निकाल देता है एंड दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट फार्मूला से वो निकाल देता है, बट उससे समझ में नहीं आता है, फील नहीं आता उससे। जैसे जो हम कहना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा है। देखिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए इस स्ट्रिंग पे वेव चल रहा है, तो पहले एसएचएम में आप क्या पढ़ते थे? एसएचएम में आप पढ़ते थे कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आता है, और जब मीन पोजीशन पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ऐसा हमने एसएचएम में पढ़ा था। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं होगा, गलत बात है, वो गलत चीज़ है। आप सोचोगे उल्टा। कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा? तो इनर्शिया पे, मतलब मीन पोजीशन पे, यहाँ पे, वो तो होना ही है। ओके, इज दिस ओके? सो सपोज फॉर एनी टाइम सपोज एट t इज इक्वल टू 0 आई एम आस्किंग अबाउट कि इस पॉइंट पे ऐसा वेव फॉर्म आया, हमने t इक्वल 0 पे फोटो खींचा और फोटो खींच के हम ये यहाँ लगा दी, दिस इज एट t इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन है कुछ, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो पुट t इज इक्वल टू 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू कर्व phi इज ऑल्सो 0, so it is cos square 0 and cos 0 is 1 and cos square is also 1, so it is maximum cos square x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इतना। यानी कि अगर मीन पोजीशन पे जाहिर सा बात है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, लेकिन वेव के केस में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम कहाँ होगा? यहीं पे होगा। यही बात मैं सिखाना चाहता था आपको। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हो। आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ऐसा इंट्यूशन आता है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ काइनेटिक, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। इज दिस ओके? ऐसा फील भी कर सकते हो। एक बात तो समझ में आता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि मीन पोजीशन पे जब वो क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उसका। इस बात में कहीं से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सर हमने तो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग इस पॉइंट पे इतना ही इलोंगेटेड है, लेकिन अगर अगर लिया जाए सेम लेंथ का अगर डिवाइडेशन यहाँ लिया जाए तो आप देखिए ये इतना दूर का एक्सटेंशन है। आप ज़रा गौर से देखिएगा तो ये पता चलेगा। ये देखिए ये इतना एक्सटेंडेड है ये, और यहाँ देखिए ये एक्सटेंशन कहाँ ज़्यादा है? मीन पोजीशन पे। तो फिर जब एक्सटेंशन वहाँ ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कैसे मैक्सिमम हो सकता है? इन दिस वे वी कैन फील इट। इज दिस ओके? राइट इट डाउन। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी as well as kinetic energy is maximum at this point। और कहीं पे भी जहां मर्जी हो पूछ ले, वहां पे जितना काइनेटिक एनर्जी उसके पास है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है। बस अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो जितना इस पॉइंट के पास इस समय काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल के पास होगा यहाँ बढ़ने के बाद, उतना ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यही बात समझाना चाहते थे आपको। इज दिस ओके? चलिए, अच्छा, तो एक पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इतना है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इतना है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें कि dE ओवर dx, ये कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का सम कि डेवर u ओवर डेवर x प्लस डेवर k ओवर डेवर x। सो दिस इज व्हाट
टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ at any time and at any point. Is this okay? लिख लीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स है और इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों तो सेम ही है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज डेवर ई ओवर डेवर एक्स, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि ये क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हम इधर से ऐसे करें, ठीक है, मतलब डेवर यू ओवर डेवर एक्स अगर हम देखें, सपोज दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, अगर हम इस रेफरेंस में देखें तो ये कैसा होगा, ठीक है, या बोले तो आप ऐसा देखिए किसी भी एक्स पे कैसा होगा, ठीक है। तो वेव तो चलता है ऐसे, वेव तो चलता है ऐसे, चलता है ना, ये कैसे चलेगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ चलेगा ऐसे, कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसे चलता है इस तरीके से। क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि ये ऐसे होके ऐसे जाता, ठीक है। अब आप कॉस स्क्वायर ले लो तो यहां से आप कर लीजिए, ज्यादा सही यही होता है, मैं बताऊं आपको। बेसिकली ये शुरू यहां से होगा, बट ओके इट इज डेवर यू ओवर डेवर एक्स, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों कि ये जाना चाहिए तो नीचे, बट वहां स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये नीचे से ऊपर चलाएगा, बस ये ऐसा ऐसा ग्राफ चलेगा। अब चाहे किसी का ही पूछ दे, आपसे अगर पूछ दे डेवर के ओवर डेवर एक्स, तो उसका भी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ये ठीक है। चाहे डेवर ई ओवर डेवर एक्स पूछ दे तो भी उसका ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। लिख लीजिए इन सब बातों को। ठीक है, लिख लीजिए। Write it down by pausing the video. चलिए अब देखते हैं कि मुझे क्या आया, मुझे आया डेवर ई ओवर डेवर एक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये हुआ टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। बट मुझे ज़्यादा ज़रूरी है पावर का। क्यों ज़रूरी है मैं समझाता हूँ आपको। पहले हम पावर निकालते हैं इससे। पावर क्या होता है? अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज नथिंग बट डी ओवर डी टी। इज दिस ओके? हम अगर ऐसा करें कि इसमें डेवर एक्स और डेवर एक्स दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई फर्क इक्वेशन पे पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? डेवर ई ओवर डेवर एक्स इंटू डेवर एक्स ओवर डेवर टी हो जाएगा। तो ये क्या है? ये तो यही वाला है। और ये क्या है? डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी मतलब एक्स डायरेक्शन में चलने का रफ्तार क्या है? v, दैट इज वेव वेलोसिटी। तो जस्ट पुट इट हियर, इट वुड बी p इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू और डी एक्स ओवर डी टी को v, दैट इज वेव वेलोसिटी, और इट इज कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये कौन सा पावर है? ये इंस्टेंटेनियस पावर है। आपको याद होगा हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर।
मुझे किसी भी इंस्टेंट पे जाना है, किसी पॉइंट पे जाना है, पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट दैट इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी पॉइंट का हमको पावर निकालना है कि कितना पावर इस समय, यानी कि एनर्जी का रफ्तार क्या है। व्हाट इज डी ओवर डी, पावर क्या है, एनर्जी का रफ्तार। क्योंकि मुझे एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है, मुझे उसके रफ्तार से भी मतलब होता है। तो अगर एनर्जी का रफ्तार किसी स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे जिस समय वेव कैरी कर रहा है और वो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी, तो उस समय किसी भी पॉइंट पे हमको पावर निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। इज दिस ओके? और एंड दिस इज विच पावर? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, राइट इट डाउन। आप पॉज करके लिख लीजिए उसको। चलिए, बट इस पूरे वेव में हमको इंस्टेंटेनियस पावर से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे वेव में हमको जो लेना देना है वो एवरेज पावर से है। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? दैट इज व्हाट? पी एवरेज। पी एवरेज। तो एवरेज किसी भी चीज का हम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। एवरेज जब भी निकालेंगे एक टोटल टाइम पीरियड में निकालेंगे। जैसे अगर वेव चल रहा है, तो ये 0 से लेकर t टाइम तक, या फिर t कोऑर्डिनेट में देखें अगर तो, या फिर हमको पूरे 0 से लेकर t, यानी कि एक कंप्लीट वेव में, कंप्लीट वेव कब पूरा होता है? t टाइम में, दिस t टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड होगा तो एक वेव कंप्लीट होता है, एक पीरियड यानी कि एक SHM पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना? उस पीरियड में ही हमको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे तो फिर वो रिपीट करने वाला है उसको ना। तो अगर हम एक में निकाल ले तो हमको सारे में पता चल जाएगा। ठीक है, यही काम करेंगे। तो अगर हमको पी एवरेज निकालना है दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पी, हाँ, दैट इज पी जो कि टी का फंक्शन है, और इंटू टी ओवर डी टी, सॉरी डी टी। ये है एवरेज का फॉर्मूला। कहां से कहां तक? तो 0 से t तक, 0 से t तक। ठीक है, तो इसमें अगर निकालोगे तो ये आएगा कुछ ऐसा। इस पोर्शन को आप ना, इस पोर्शन को आप कांस्टेंट मान लीजिए, k डैश कर लीजिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा जस्ट अभी के लिए? ठीक है, ये क्या आ जाएगा? k डैश इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी, दैट इज 0। कैपिटल टी को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप देख लीजिए, ये लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड दैट इज डी टी 0 ओवर 2 पाई अपॉन ओमेगा। इज दिस ओके? सो आप ये वैल्यूज निकालिए। ओके, रिटन। सो आपको क्या करना है? आपको वैल्यूज निकालना है। आपको, आप अगर इसमें पुट करके वैल्यूज निकालोगे तो यू विल गेट व्हाट? k डैश इंटू 1/2। इसका वैल्यू आपको 1/2 आएगा, आप करके देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर का है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, तो 1 का हो जाएगा t और माइनस साइन का फंक्शन, तो साइन का फंक्शन 0 है। आप करके देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। चलिए ऊपर करते हैं तो k डैश, और ये आता है दिस इज 1 प्लस साइन, ऐसे ही करते हैं ना, साइन, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमको इंटीग्रेट करना है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इट इज हेयर नाउ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा इंटू डी टी। दिस इज 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, सो इफ यू पुट इट, इफ यू जस्ट सॉल्व इट, आप इसको लिख लीजिए पहले, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो देखिए
चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू के डैश इज इक्वल टू के डैश अपॉन 2, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी, कहाँ से कहाँ तक, अच्छा इसको 0 से t करना हो तो 0 से t भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से t, उसी को 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख रहे थे, एनीवे आप t भी कर सकते हैं, प्लस कॉस सॉरी 2kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 dt। इसे मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा या फिर t तक, चलो ठीक है, और ये चलो t तक ही कर लो, इसको इंडिकेट करने पे चुपचाप t आ जाएगा, आपको पता ही है। तो ये cos का करेंगे तो साइन आएगा, ठीक है, और साइन जो होता है दिस इज इसका साइन आएगा, और ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज व्हाट बेसिकली, अगर ये देखा जाए तो cos थीटा इंटू डी थीटा है, मतलब या फिर ऐसा कर लो cos ओमेगा टी इंटू डी टी है, बेसिकली है तो ये यही, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखा जाए तो cos का कर्व ऐसा चलता है ना, ये 0 और ये t तक, मुझे कहाँ तक करना है, 0 से लेकर t तक, और इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। सो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये cos ओमेगा टी है, अगर आप ध्यान से देखो तो जितना नीचे का एरिया है उतना ही ऊपर का एरिया है, ये देखो ये और ये, तो 0 से t तक में दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो कैन आई पुट 0 हियर, आंसर है यस। सो इट इज पी एवरेज इज इक्वल टू के डैश बाई 2, और यहाँ आएगा t और वो हो जाएगा 0 अपॉन t, ये t से t कट जाएगा, दैट इज k डैश बाई 2, यानी कि p एवरेज इंटू के डैश इंटू 1/2। कहने का मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा का जो एवरेज आता है वो 1/2 ही आता है, और आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने ग्राफ देखा अभी, अगर हम बात करें cos स्क्वायर ओमेगा टी और t, इसके ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम कितना है, इतना, और मिनिमम कितना है, तो 0 है ना। अब आप देख लीजिए मैक्सिमम कितना है ये, और मिनिमम कितना है 0। सपोज इफ इट इज 1, तो मैक्सिमम कितना है 1 और मिनिमम कितना है 0, -1 आने का यहाँ सवाल ही नहीं है, तो मैक्सिमम इज 1 एंड मिनिमम इज 0। सो इफ यू पुट इट एवरेज दैट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, दैट इज 1/2, यहाँ से भी वो सिंपली आ जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो वो तो एक तरीका है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का वो मेथड है, तो वो मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करके हमको क्या आ गया कि पी एवरेज हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए आप, हम लोग पी एवरेज निकालते हैं फिर। चलिए सो पी एवरेज फॉर अ टाइम पीरियड, एक पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या आ जाएगा, दैट कम्स टू बी 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी और इंटू कॉस स्क्वायर एवरेज का क्या हो जाएगा 1/2, एक पूरे टाइम पीरियड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, सो दिस इज पी एवरेज, दैट इज 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज व्हाट एवरेज पावर transmitted in a string over a time period। तो अगर बात किया जाए तो स्ट्रिंग एक वक्त में पूरा का पूरा एक्सटेंड नहीं है, कभी ना कभी रेस्ट पे आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर रेस्ट पे आता है उसका पार्टिकल, फिर उस पे जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम एवरेज पावर लेके चले, क्योंकि कभी कभी जीरो होता है, कभी कभी मैक्सिमम होता है, कभी जीरो कभी मैक्सिमम, कभी जीरो कभी मैक्सिमम,
तो हम लोग क्या लेके चले भाई, हमको तो एक बताइए जो हम लेके चले पूरे में, हम ये कह सके कि एक इतना वैल्यू ले लीजिए, ये पूरे में चल जाएगा आपका, दैट इज एवरेज वैल्यू। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका अगर रिजल्ट जानना है तो मैं एक टीचर से पूछूं कि बताओ इस क्लास का रिजल्ट क्या है, तो वो मुझे सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं बताएगा, वो एक एवरेज बताएगा कि हाँ इसका एवरेज रिजल्ट जो है 70% है, मतलब 70% है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्लास कैसा है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सपोज सी सेक्शन में 60% वाले बच्चे हैं, तो व्हाट इज द 60%? क्या सारे का परसेंटेज 60% है? नहीं, उस क्लास का एवरेज 60% है। इज दिस ओके? दैट इज वाई, और वो एक काफ़ी आसान वैल्यू है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ एक होल एंड सोल क्या है, तो यही वो एवरेज है, दिस इज एवरेज पावर। इस पूरे घटना में जब स्ट्रिंग वो एनर्जी यहाँ से लेकर वहाँ जा रहा था तो कभी उसका पावर 0 हो रहा था, कभी उसका पावर मैक्सिमम हो रहा था। सो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि 0 ले या मैक्सिमम ले, तो हम लोगों के बोलचाल की भाषा में अच्छा भाई एवरेज बता दो जो यहाँ से वहाँ तक वो कैरी करता है, तो दिस इज द एवरेज बेसिकली। ओके, राइट इट डाउन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है बस, ठीक है? चलिए, अच्छा अब आपके सामने एक नया टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। क्योंकि वेव के टर्म्स में हम हमेशा इंटेंसिटी की बात करते हैं, ना कि पावर की या एनर्जी की। ठीक है, हम लोग वेव के टर्म में हमेशा इंटेंसिटी की बात करते हैं। लाइट, तो लाइट में हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। साउंड, इंटेंसिटी की बात करते हैं। डेसिबल, दैट इज टर्म ऑफ इंटेंसिटी इन साउंड वेव, विल डिस्कस इट इन लेटर चैप्टर। बट हम लोग वेव में जब भी बात करते हैं तो ना ही पावर का बात करते हैं, जनरली पावर का, एनर्जी की बात तो करते ही नहीं है, कभी कभी पावर का बात कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो इंटेंसिटी यूज़ करते हैं। तो हमको इंटेंसिटी पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको समझा पाए हम। इंटेंसिटी, मान लीजिए कि एक लाइट जल रहा है, एक बल्ब है जो जल रहा है, इस बल्ब का पावर 100 वाट है या जो भी दिया हुआ है, ठीक है? बल्ब का पावर एनर्जी थोड़ी देगा, वो तो वाट में देगा, क्योंकि मुझे रफ्तार से मतलब है। तो इस बॉल का पावर है P। अब ये लाइट जलता है तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये वेव के फॉर्म में पूरा फैलेगा। कैसे फैलेगा, सर्कल में या स्फीयर में? आंसर स्फेरिकल, पूरा फैलेगा। तो ये पूरा फैला, ये पूरा फैला सेंटर। ओके, ये एक बल्ब है जिसका पावर P है और इसका एनर्जी क्या कर रहा है, पूरे जगह पे फैल रहा है, जहां जहां तक ये फैल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक टाइम पे इसका पूरा, अच्छा इसका पूरा का पूरा एनर्जी कैसा है, स्फेरिकल। इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा वेव फ्रंट क्या होता है वेव ऑप्टिक्स में। बेसिकली इसको एक वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब क्या है, एक पूरा स्फीयर है जो इसका पावर कैरी करके आगे बढ़ रहा है। जैसे इसका पावर कभी ना कभी ऐसा यहाँ रहा होगा और ये बढ़ते 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 यहाँ जाएगा, फिर बढ़ते 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 यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो बल्ब है वो बल्ब का पहले पावर निकला ऐसा, फिर वो ऐसे 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 बढ़ते निकलता। जैसे कैसे पानी में आप ये पेबल डालो, एक छोटा सा पेबल डालो, तो क्या करेगा, वो ऐसे जैसे फैलता चला जाएगा। तो क्या करेगा, उस समय जो आपने एनर्जी दिया उस एनर्जी को लेके वो पूरे जगह जहां जहां तक फैल सकता है वहां तक वो फैल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि जिस समय हम फेंक रहे थे उस समय ऊपर से फेंके तो एक हाइट पे, निश्चित हाइट पे हो गया। तो हाइट पे गया तो उस समय उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया होगा और उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा। सो सपोज करिए एनर्जी पर यूनिट टाइम उस समय 10 वाट हम दिए उस पानी में सेंटर पे, तो वो पूरा ऐसे होके गया। अब जरा सोचिए एक समय पे एक फोटो खींच लीजिए, तो उस समय एक सर्कल आपको दिखाई देगा। तो उस पूरे सर्कल में अगर उस पार्टिकल के, सारे पार्टिकल के एनर्जी को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा, अगर पावर को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा, 10 वाट। कितना होगा, 10 वाट। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर सारे पार्टिकल के पावर को जोड़ लिया जाए तो क्या होगा, 10 वाट। तो वो 10 वाट को लेके क्या कर रहा है, फैल रहा है। वो 10 वाट को लेके क्या कर रहा है,
फैल रहा है पूरा हर जगह। उसी तरह ये जो बल्ब है जब ये जला तो ये स्फेरिकली गया, चारों तरफ गया। तो मान लीजिए ये पावर अगर 100 वाट का है तो इस पूरे पार्टिकल में जितना स्फीयर ये बना पूरा, उस पूरे स्फीयर के पार्टिकल्स के पास पूरे उसके स्फीयर में जितना भी पार्टिकल है, अगर उस सारे पावर को अगर जोड़ लिया जाए तो उसका पावर कितना होगा? तो इतना ही होगा जितना वो छोड़ा है, ज्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सराउंडिंग से उसको पावर मिल जाएगा। तो सराउंडिंग जितना पावर पी है उसके पूरे के पास उतना है, मतलब पूरे के पास, पूरे पार्टिकल के पास जितना। मैं अगर पूछे कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है स्फेरिकल, इस स्फीयर में जितने भी पार्टिकल है या जितना भी लाइट एनर्जी है, सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो वो उसका पावर कितना है? P के बराबर है। यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरे पार्टिकल के पास, पूरे पॉइंट पे अगर सारे पावर को जोड़ लिया जाए, इस पॉइंट के पावर, इस पॉइंट के पावर, इस पॉइंट का पावर, सारे स्फेरिकली पूरे पॉइंट के पावर को जोड़ लिया जाए तो उसका पावर कितना होगा? इतना होगा। उसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा? इतना ही होगा पूरे जगह पे। समझ आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए कि ये एक डिस्टेंस r है और ये एक डिस्टेंस r डैश है जो कि ग्रेटर देन r है, वो दिख भी रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम अपने आंख से देखें, अगर हम यहाँ पे अपने आंख से देखें, ये आंख है, ठीक है, आंख से देखें और ठीक इस डिस्टेंस पे हम यहाँ पे आंख से देखें, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे बताइए, मुझे ज्यादा लाइट कहां नजर आएगा, यहां पे या यहां पे? आंसर है ऑब्वियस सी बात है यहां पे। कैसे? मैं बताता हूं आपको कैसे। सपोज इस आंख में जितना एनर्जी इस पॉइंट पे जा रहा है वो कितना है, तो ध्यान से देखिए। अगर ये बल्ब P है मतलब इसका पावर r डिस्टेंस पे जो आंख गया यहाँ पे, और उसका मान लीजिए कि जो रेडियस है इस आंख का, सपोज करिए इसको r ले लीजिए, कैपिटल R, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, r डैश, इसको r ले लीजिए, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये r डिस्टेंस पे, और इसका जो इस आंख का जिसमें लाइट घुस रहा है उसका रेडियस, अरे अंदर जो जा रहा है वो भी तो गोल गोल प्यूपिल में जाता है ना, तो प्यूपिल का भी कोई ना कोई रेडियस तो होगा ना। मान लीजिए वो r है, हाँ ये बात अलग है कि r इज वेरी वेरी लेस देन r, ठीक है, कोई बात नहीं, बट कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। और दूसरे केस में एक हम यहाँ आ गए जो कि r डैश पे है, यहाँ पे भी देखें तो आंख का रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही है, हाँ ये चेंज हो गया है। और फिर जब r बहुत छोटा छोटा r से है तो r डैश से भी तो बहुत छोटा होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें कि एनर्जी पर सेकेंड कितना मेरे आंख में जा रहा है, मतलब कितना पावर मेरे आंख में जा रहा है, दैट इज एनर्जी पर सेकेंड। यही होता है ना पावर, तो कितना मेरे आंख में घुस रहा है, एनर्जी का कितना रफ्तार मेरे आंख में घुस रहा है, तो दैट इज क्या? तो ये पावर पूरे में कितना है? 4πr² P है, तो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो P अपॉन 4πr² इनटू, मतलब अरे भाई ये यूज करते थे यूनिटरी मेथड कि 4πr², यानी कि पूरे सरफेस में पावर कितना है तो P, 4πr² में पावर कितना है तो P। इसलिए πr² घुसने, अब इसमें तो इतना ही घुसेगा ना, πr², छोटा r² में कितना होगा? सपोज अगर यूनिट में होगा तो P अपॉन 4πr, पहले बचपन में करते थे, और इसलिए πr² बचपन की तरह P अपॉन 4πr² इंटू πr² करते थे ना, ये काम याद करो। वही यहाँ पे करेंगे कि एनर्जी पर सेकेंड जो मेरे आंख में घुस रहा है दैट इज E अपॉन S इज इक्वल टू πr²। और अगर यहाँ पे बात करें अगर कि यहाँ पे कितना एनर्जी पर सेकेंड घुस रहा है मेरे आंख में, दैट इज P 4πr² इंटू πr², उसी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें अगर हम आपसे पूछें कि किसका पावर ज्यादा है, किसके अंदर घुस रहा है एनर्जी ज्यादा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? ऑब्वियसली नीचे वाले में। सपोज अगर r डैश जो है वो 2r है
तो ये कितना हो जाएगा, इस समय पावर कितना हो जाएगा, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, तो 1/4 टाइम्स p अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 चौथाई हो गया उसका, मतलब 1/4 जितना इधर आ रहा है यहाँ पे 1/4 आ रहा है। तो आंख में जो घुसा एनर्जी मेरे पास, तो हमको कहाँ पे ज्यादा लाइट मिलेगा, यहाँ की यहाँ पे, तो आंसर है यहाँ पे। क्यों मिलेगा, दैट इज द आंसर। ठीक, अच्छा, तो इसी को बेटा कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आई बात समझ में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर और जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, बट जनरली हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी। ठीक, तो ये बेसिकली वही है। अगर आप देखें, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये 4 पाई आर स्क्वायर पर यूनिट एरिया, जितने दूर में एनर्जी फैला है उस एरिया से हमको डिवाइड कर देना है, बस। आई बात समझ में। यहां पे अगर बात करें तो यहां से यहां तक, मान लीजिए पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 और 2 पे क्या बदल गया जो हमको कम दिखने लगा, आंसर है इंटेंसिटी। तो यहां पे इंटेंसिटी I1 था और यहां पे इंटेंसिटी I2 था, और I2 जो है वो कम है I1 से। आई बात समझ में, लिख डालिए इसको। अब हम लोग वेव में इंटेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वेव में अक्सर इंटेंसिटी की ही बात करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। क्या है इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया जी, कौन सा एरिया, तो जितने दूर में एनर्जी बटा है उसका एरिया। तो इसमें एनर्जी कहां बटा है, पूरे स्फीयर में, तो पूरे स्फीयर का एरिया लेंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी पूरे स्फीयर में है। आई बात समझ में, लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में लाइट में बहुत आता है ये। चलिए, अगर हम आपसे एक बात इसमें पूछें, अगर हम आपसे एक बात इसमें पूछें कि बताओ भाई I1 कितना है, दैट इज P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई बताओ I2 कितना है, तो नथिंग बट P अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। क्यों लिए 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्यों लिए, क्योंकि उस जगह पे, उस पूरे स्फीयर में जिसका रेडियस आर डैश है, उसमें पूरा P बटा हुआ है, दैट इज दिस वन। तो अगर हम इसका रेशियो ले लें I1 अपॉन I2, इट इज व्हाट, आप अगर देखोगे करके तो इट वुड बी आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि I1 पे R है और I2 पे R डैश स्क्वायर है। मतलब यहां से हमको एक चीज नजर आता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर फॉर दिस केस। R जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका स्क्वायर टाइम इंटेंसिटी घटता चलेगा। इसीलिए जब दूर जाते हैं तो लाइटें कम दिखने लगती है या सुनाई भी कम देने लगता है। ये देखने के लिए भी एप्लीकेबल है और सुनने के लिए भी एप्लीकेबल है। लिख लीजिए इसको। खैर ये तो स्फेरिकल केस है, कई बार सिलिंड्रिकल केस भी होता है या पैरेलल केस भी होता है। मैं बताऊंगा बाद में, वेव ऑप्टिक्स में बहुत पढ़ना है ये। चलिए,
ये तो मैंने बस समझाया क्योंकि मुझे इंटेंसिटी का आवश्यकता है यहाँ पे। चलिए देखिए, तो इंटेंसिटी मैंने पढ़ा कि इंटेंसिटी क्या होता है। तो अब हम आते हैं वापस अपने स्ट्रिंग पे। तो ये स्ट्रिंग है, एनर्जी अभी पावर निकाला हमने। पावर क्या आया? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। आई थिंक यही है ना? यस, ठीक है। तो ये आपका आ गया पावर। कौन सा पावर? एवरेज पावर। इंटेंसिटी पे हम जितना भी काम करेंगे सब एवरेज से ही करेंगे, इंस्टेंटेनियस का हमको कोई लेना देना नहीं है। सपोज कभी एग्जामिनर का माथा खराब है, पूछ दिया कि इंस्टेंटेनियस पावर बताइए उस जगह पे, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करना, बट 95% चांस है कि ऐसा आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये एवरेज पावर है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अब निकालना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होगा? तो P एवरेज अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? तो जितने दूर में एनर्जी बटा होगा। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें कि वेव जा रहा है, तो इसमें एनर्जी कहाँ बटा होगा? अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, सोचिए ध्यान से, अगर ऐसे जा रहा है तो पूरा एनर्जी इधर तो फैलेगा नहीं, वो तो उसी स्ट्रिंग में रहेगा। तो वो किस में बटेगा? इस एरिया में, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसमें, ठीक है। ये एनर्जी किस में बटेगा? इसमें। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पास सारा एनर्जी है या नहीं? अभी अगर एनर्जी की बात करें स्ट्रिंग के केस में, तो सारा एनर्जी कहां पे है? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में, यानी कि दिस, सपोज दिस इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो सारा का सारा एनर्जी कहां बसा हुआ है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। अब दिमाग लगाइए ना, आप ऐसे से जब कर रहे हो तो एनर्जी पूरा थोड़ी ना उधर जा रहा है, वो तो उसी रस्सी में है, यानी कि उसका रस्सी का एक जगह पे जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उन सभी के पास एनर्जी है। तो उस सभी का पार्टिकल किस में आएगा? एक क्रॉस सेक्शन एरिया में आएगा। उस एरिया में जो मोटाई होगा उसी में ना एनर्जी सारा है। तो मुझे यहाँ पे अगर इंटेंसिटी निकालना है तो कौन सा एरिया यूज करना चाहिए? ए। ये अलग है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों, ठीक। अच्छा, सपोज करिए इसका लेंथ L है और इसका मास जो है वो m है, तो रो क्या होगा? अगर रो की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, म्यू, एंड दैट इज म्यू अपॉन एरिया। तो म्यू अपॉन ए को क्या हम रो लिख सकते हैं? आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से इसको हम लोग रो लिखेंगे। तो दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो और बी। आई बात समझ में? ये सारा चीजें। तो ये हुआ दोस्तों इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला? तो इंटेंसिटी ऑफ साइन वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से जितना इंटेंसिटी मूव कर रहा है, दैट इज दिस वन। आई बात समझ में? लिख लीजिए। Is this okay? तो ये हुआ दोस्तों। अब हमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे भी हमको इंटेंसिटी का बात करना है। हालांकि ये पूरा फॉर्मूला ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे बस आई जो है बेसिकली ये ए स्क्वायर से ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो होता है, क्योंकि ये एफ फ्रीक्वेंसी पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है जितना ज़्यादा, अगर मान लो कि हम ऐसा बात करें, मान लो ये दो धागा है, दोनों सेम है,
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी यही है, इसमें फ्रीक्वेंसी यही है, दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी का वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी मान लो A1 है और इसका इंटेंसिटी मान लो A2 है। तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, जो भी होगा दैट इज A1 स्क्वायर, और इसका जो भी होगा, सपोज इफ इट इज I1, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी से में देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, दोनों में फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट कर दिया, और मटेरियल सेम है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो रो भी वही रहेगा दोनों का, और रो अगर एक है तो दोनों में टेंशन भी बराबर ही है, टेंशन भी दोनों में क्या है, बराबर ही है, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन ही बराबर ही है। अगर ऐसा केसेस है तो I सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और मेनली किसी भी वेव का इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे ही डिपेंड करता है। ये आज आप सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो हियर वी विल गेट फॉर दिस केस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, और जनरली हमको यही केसेस मिलने वाले हैं, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ सारा केस, एनर्जी तक का केस जो कि हमको निकालना हो सकता है, लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए कम टू एस.सी. वर्मा बुक में आप एक्सरसाइज आप अभी पूरा उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 देख सकते हैं, बट कहीं कहीं फंसेंगे भी, तो फंसेंगे। कुछ रिफ्लेक्शन का पोर्शन है वो भी देखेंगे, वो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके बाद फिर वो बनाइएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव 1 2 आप लास्ट में बनाइए, ठीक है। पहले आप एक्सरसाइज बनाते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 2 जो मैंने डिस्कस कर दिया है बहुत सारी बातें, 1 to 30 आप कर सकते हैं एक्सेप्ट 16। सो आप इसको ट्राई करिए घर पे, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे, आप हमसे पूछिएगा जो भी प्रॉब्लम आएगा। सो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क SCV क्वेश्चन नंबर 1 to 30 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 रहने दीजिए, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्योंकि उसका कंसेप्ट है, उसके बाद बनाएंगे उसको, ठीक है। बट 1 से लेकर 30 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप उसको सॉल्व करिए, सॉल्व होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, सो इसके बाद जो है हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वेव के केसेस में। पहले वो क्वेश्चंस बना लीजिए, वो क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिला है उसमें भी आप देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन से अच्छे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आप SCB का जितना क्वेश्चन मैंने दिया वो बना लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।